This is a complete English grammar. First is a part of a speech. Part of a speech are the most important in English grammar. Without the second knowledge and understanding of the part of a speech, you cannot proceed in reading English properly or expressing yourself correctly. Without part of a speech, you will not understanding English. First, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, पूर्वसर्ग, जैन, अंतक्षेपण. First is a noun. A noun is a word for a person, place or things or idea. संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थानीय वस्तु या विचार के लिए एक शब्द के है. Type of noun: common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, material noun, countable noun, uncountable noun. सामान्य संज्ञा, उचित संज्ञा, सामयिक संज्ञा, सार संज्ञा, सामग्री संज्ञा, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा. Common noun. A person, place, item or things is a common noun. एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु या एक वस्तु एक सामान्य संज्ञा है. एग्जाम्पल: वी आर प्लानिंग टू गो टू अ रेस्टोरेंट. हम एक रेस्टोरेंट में जाने की योजना बना रहे हैं. Proper noun. Proper noun is the opposite of a common noun. Proper noun refers to the specific name given to any person, place or things. Proper noun always being with capital letters no matter where they occur within a sentence. व्यक्तिवाचक संज्ञा सामान्य संज्ञा के विपरीत होती है. व्यक्तिवाचक संज्ञा से तात्पर्य किसी व्यक्ति, स्थानीय वस्तु के विशिष्ट नाम से है. व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा बड़े अक्षरों से शुरू होती है, चाहे वे वाक्य में के भीतर कहीं भी हो. एग्जाम्पल: मोनू लव्स टू द एडवेंचर थिंग्स. दिस वन साइड इज अ कॉमन नाउन एंड वन साइड इज अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज अ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन आर द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल सिमिलर काइंड. सामूहिक संज्ञा वे नाम हैं जो समान प्रकार के लोगों के समूह को दिए जाते हैं. फर्स्ट इज अ बंच ऑफ ग्रेप्स. सेकंड इज अ प्राइड ऑफ लायंस, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ फ्लोक ऑफ ब्राइड्स, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, अ हियर्ड ऑफ कैटल. अंगूरों का गुच्छा, शेर का गर्व, छात्रों का एक वर्ग, पक्षियों का झुंड, घटनाओं की एक श्रृंखला, मवेशियों का झुंड. Next is an abstract noun. The name given to quality, action, idea, concept or feeling is termed as abstract noun, something which you can't see, taste it, hear or touch. गुण, क्रिया, विचार, अवधारणा या भावना को दिया गया नाम सारवाचक संज्ञा कहलाता है. कुछ ऐसा जिसे आप देख, स्वाद या सुन नहीं सकते. Given this some example: love, fear, anger, joy, excitement and other emotion are abstract noun. Okay. प्रेम, भय, क्रोध, आनंद, उत्तेजना और अन्य भावनाएं अमूर्त संज्ञाएं. Courage, bravery, cowardice and other such states are the abstract noun. Desire, creativity, uncertainty and other intent feeling are abstract noun. साहसी, बहादुरी, कायरता और ऐसी ही अन्य अवस्थाएं अमूर्त संज्ञा है. इच्छा, रचनात्मक, अनिश्चितता और अन्य सहज भावनाएं अमूर्त संज्ञा है. नेक्स्ट इज अ मटेरियल नाउन. Material noun is the name given to the material substance or things made up of something. द्रववाचक संज्ञा वह नाम है जो किसी पदार्थ या किसी चीज से बनी चीजों को दिया जाता है. Material nouns are not generally countable, means we cannot count them because they are in the form of liquid, semi-liquid और solid. भौतिक संज्ञाएं आमतौर पर गणनीय नहीं होती. इसका मतलब है कि हम उन्हें गिन नहीं सकते क्योंकि वे तरल, अर्धतरल या ठोस रूप में हैं. Next is a noun. Noun is this class or material like cloth, air, metal, gold,
salt, iron, silver, steel, brass, bronze, copper, aluminium, lead, coal, coral, jam, diamond, glass, fiber, etc. Given this as some example, कॉटन डिजर्ट आर वेरी चीप एंड कंफर्टेबल। सूती कपड़े बहुत सस्ते और आरामदायक होते हैं। माई मॉम परचेज अ गोल्ड रिंग फॉर मी। मेरी माँ ने मेरे लिए एक सोने की अंगूठी खरीदी। आई ड्रिंक मिल्क इन द सिल्वर ग्लास। मैं चांदी की गिलास में दूध पीता हूँ। नेक्स्ट इज अ काउंटेबल नाउन। Countable noun is a noun that names the things which are countable and occur in both single and a plural form. The noun which can be modified by the numerals are countable nouns. Simply, if we can count something as 1, 2, 3, that comes under a countable noun. गणनीय संज्ञा वह संज्ञा है जो उन चीज़ों का नाम देती है जो गणनीय है और एकल और बहुवचन दोनों रूपों में होती है। जिन संज्ञाओं को अंकों द्वारा संशोधित किया जा सकता है वे गणनीय संज्ञा है। बस अगर हम किसी चीज़ को 1, 2, 3 के रूप में गिन सकते हैं तो वह अगणनीय संज्ञाएं के अंतर्गत आता है। गिवन सम एग्जाम्पल, देयर इज वन चेयर इन दिस रूम। इस कमरे में एक कुर्सी है। चेयर इज अ सिंगुलर काउंटेबल। कुर्सी एक वचन गणनीय है। देयर आर 10 चेयर इन दिस हाउस। घर में 10 कुर्सियाँ हैं। चेयर इज अ प्लूरल एंड अकाउंटेबल। कुर्सी बहुवचन और गणनीय है। अनकाउंटेबल नाउन। Uncountable noun is a noun that names the things which are not countable. It cannot take a plural form. Uncountable noun is also called as mass noun as we cannot count it. यानी कि अगणनीय संज्ञा वह संज्ञा है जो उन चीज़ों का नाम देती है जो गणनीय नहीं है। यहाँ बहुवचन रूप नहीं ले सकता। अगणनीय संज्ञा को द्रव्यमान संज्ञा भी कहते हैं क्योंकि हम इसकी गणना नहीं कर सकते। ओके, गिवन दिस सम एग्जाम्पल, देयर इज नो मोर मिल्क इन द किचन। रसोई में अधिक दूध नहीं है। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर फर्नीचर। कृपया अपने फर्नीचर की अच्छी देखभाल करें। आई नीड सम वाटर। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। एग्जाम्पल, ही गेव मी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। उन्होंने मुझे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। देयर आर सम नाउन्स विच डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। कुछ संज्ञा ऐसी होती है जो बहुवचन रूप नहीं ले सकती है। दे आर ऑलवेज यूज इन अ सिंगुलर नंबर। दिस नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। इनका प्रयोग हमेशा एकवचन संख्या में ही किया जाता है। Following nouns are always used in a single number: machinery, information, poetry, luggage and jewelry, knowledge and percentage etc. ये संज्ञा बेशुमार संज्ञा है। निम्नलिखित संज्ञा हमेशा एकवचन संज्ञा में उपयोग की जाती हैं: मशीनरी, सूचना, कविता, सामान, आभूषण, ज्ञान, प्रतिशत आदि। ओके, नेक्स्ट इज इनकरेक्ट। माई ट्राउजर इज डर्टी, यानी कि मेरी पतलून गंदी है। करेक्ट इज माई ट्राउजर आर डर्टी, मेरी पतलून गंदी है। दिस इज अ करेक्ट बिकॉज ट्राउजर इज अ प्लूरल फॉर्म। देयर आर सम नाउन्स विच आर ओनली यूज इन अ प्लूरल फॉर्म। कुछ संज्ञा है जो केवल बहुवचन रूप में ही उपयोग की जाती हैं। Following nouns are always used in a plural number and tags plural verb with them. निम्नलिखित संज्ञा हमेशा बहुवचन संख्या के रूप में ही उपयोग की जाती है और उनके साथ बहुवचन क्रिया लेती है। फर्स्ट इज स्पेक्टिकल, टोंग्स, पिंसर, सीजर, गॉगल्स, gallows, fangs, arms, amends, trouser, pants. Particulars, proceed, regards, riches, savings, troopers, thanks, braces, wages, belongings etc. चश्मा, चिमटा, चिमटा, कैंची, काले चश्मे, फांसी, नुकीले, भिक्षा, संशोधन, पतलून, पेंट,
आय, सामान, धन, बचत, सैनिक, धन्यवाद, ब्रेसिस, मजदूरी, सामान आदि। इनकरेक्ट, मैथमेटिक्स आर एन इजी सब्जेक्ट। गलत, गणित एक आसान विषय है। करेक्ट, मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। गणित एक आसान विषय है। There are some of nouns which looks as a plural form but actually they are singular and hence take singular verb with them. Following words are singular and take singular verb. Mathematics, politics, news, politics, physics, economics, athletics, innings, etc. Incorrect. Cattle is grazing in the field. खेत में मवेशी चर रहे हैं। करेक्ट, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मवेशी खेत में चर रहे हैं। सम कलेक्टिव नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म दे डू नॉट टैक्स but with them always plural verb is used. Example, cattle, people, police, poultry, and gentry and peasantry. If in a sentence, if noun preposition the same noun is given, then this noun will be in a singular form. We will not take plural form of them. Example, matches after matches were played between India and Pakistan. This is incorrect है। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के बाद मैच। मैच आफ्टर मैच वर प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच दर मैच खेला गया। To make compound nouns plural always adds or es to the main word only. यौगिक संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए हमेशा मुख्य शब्द में s और es जोड़ें। Example, mother-in-laws. This is incorrect. Mother-in-law, mothers-in-law. This is correct. Commander-in-chiefs, incorrect. Commanders-in-chief, correct. Next is a possessive noun. Possessive nouns are the nouns which show ownership. Possessive nouns refer to something which you want. यानी कि अधिकारवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जो स्वामित्व का बोध कराती हैं। पोजेसिव नाउन से तात्पर्य उस चीजों से है जो आपके पास हैं। First is singular possessive nouns add apostrophe s to the singular word to show possession. सिंगुलर पॉजेसिव नाउन्स में अधिकार दिखाने के लिए एक वचन शब्द में अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ें। एग्जाम्पल, कार्स इंजन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वन कार। इन दिस एग्जाम्पल कार्स एड इज अपॉस्ट्रोफी एस। कार का इंजन, हम यहाँ पर एक कार की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अ बॉयज बुक। Here we are talking about one day boy. Boy's book, हम यहाँ पर एक लड़के की बात कर रहे हैं। Next is when a plural words end is as or es, then do not use as after apostrophe in the that word. जब बहुवचन शब्द s या s से समाप्त होता है तो उस शब्द में apostrophe के बाद s का प्रयोग न करें। Next is in such word add only the apostrophes to the end or the word. से शब्दों में शब्द के अंत में केवल apostrophe जोड़ें। Given this some example, cars engine. Here we are talking about more than one car. In this example, cars uses apostrophe s. कारों का इंजन, हम यहाँ हम एक से बढ़कर एक कारों की बात कर रहे हैं। बॉयज बुक, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन ऑन बाय। लड़कों की किताब, यहाँ हम लड़के से ज़्यादा की बात कर रहे हैं।